Welcome back. In this particular video, we are again talking about the solution of chapter number 10, that is Introduction to Internet and Web of IP grade 12, and this is part number 2 for this particular topic. इसके previous session में हमने already first 11 question का solution देख लिया है. यदि आप उस वीडियो को देखना चाहें तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. But before that, I would like to request you that please subscribe my channel if you are visiting for the first time या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल. So let's see what is question number 12 now. It is asking that what do you understand by web browser and web server. इसके previous session में भी हमने इसके बारे में बात की थी and there we saw that web server is the place where we actually keep our all www resources and उन resources को यदि हमें use करना होता है तो for that we use web browsers in our local PC. So we can say that web browser is basically an application software which resides in our client computer and that navigate through the world wide web and display web pages. So यदि हमें वेब पेजेस या वेबसाइट ओपन करनी है तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें एक ब्राउजर की जरूरत पड़ती है. सम ऑफ द पॉपुलर वेब ब्राउजर वी ऑल नो दैट Chrome is there, Firefox is there, which is basically Mozilla, and similarly we have Opera and we can say Internet Explorer and all. So there are so many different web browsers are available in the market. So most popular one is your Chrome and Mozilla. When we talk about the web server, so as I said, it is basically a server which is basically a computer which respond to web related requests. It handles what your HTTP request and deliver web pages. We know that जब हम www की बात करते हैं तो obviously वहाँ पर we follow client server architecture. So the server which is used by the web or www is basically known as what your web server. And to establish the communication between these two, HTTP protocol, or we can say that hypertext transfer protocol is used. So that's why we are saying that it handles what your HTTP request and then it delivers web pages to the client. So this is how we can get the answer of this particular question. Let's move to the next question now. Now here it is saying that what is URL, what are its component, exemplify. Now we all know that URL stands for Uniform Resource Locator, जिसे हम किसी एक वेबसाइट का वेब एड्रेस भी कह सकते हैं या पॉपुलरली उसी नाम से हम ज्यादातर इसे जानते हैं. So basically it referred to as web address which uniquely identifies the name of a website. For example, you can see this https://www.microsoft.com is basically a URL. दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे वेब सर्वर में www जो हमारे पास फोल्डर अवेलेबल होता है उसके अंदर जो हम एक फोल्डर रेडी करते हैं अपनी साइट के लिए, से फॉर एग्जांपल आई हैव टेक टिप नाउ, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं तो इस टेक टिप नाउ को यदि मुझे लोकेट करना है तो उसके लिए मुझे एक यूनिक एड्रेस की जरूरत पड़ती है. उस एड्रेस को ही हम एक्चुअली URL बोलते हैं, बिकॉज हमें पता है कि जब हम वेब कम्युनिकेशन करते हैं ओवर द इंटरनेट तो उसके लिए हमें HTTP की जरूरत पड़ती है या यूं कहें दिस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है. इस वजह से ये जो मेरा डोमेन नेम होता है इसके साथ हमेशा हम इस प्रोटोकॉल को इन्वॉल्व करते हैं, देन ओनली ये हमारे क्लाइंट से वेब सर्वर में कम्युनिकेट हो पाता है. सो दिस इज व्हाट योर URL. जब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ URL की, सो यू कैन सी दैट there are three components. One is your protocol, second is your obviously name and address, and third is what your file location. स्पेशली तो फाइल लोकेशन मोस्टली हम नहीं लेते हैं इनिशियल URL में, बट अगर आप स्पेशली किसी फाइल को यहाँ पे मेंशन करते हैं तो वो डायरेक्टली हमारा पेज ओपन हो जाता है या वेबसाइट या हमारा जो सर्वर होता है वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट करता है हमारे क्लाइंट में उस पेज को. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मैंने डोमेन नेम लिया है या जो नेम या एड्रेस लिया है हमारी वेबसाइट का, यहाँ पे ये www इसका अगेन एक पहला पार्ट है, सेकेंड इज द यूनिक नेम, and third this .in is also known as what your domain name. So this is how we can understand what is URL and what are its components. Let's move to the next question now. Now here it is asking that how is an absolute URL different from relative URL.
देखिए, URL की जब हम बात करते हैं तो उसे आप दो तरीके से बना सकते हैं या यूज कर पाते हैं या यूज कर सकते हैं। एक तो होता है जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल URL, कि जब आप https://www.techtipnow.in को कॉल करते हैं तो डायरेक्ट ये वेबसाइट या जो ये फाइल्स होती हैं या जो ये डॉक्यूमेंट होता है ये आपके स्क्रीन में ऑब्वियसली वेब ब्राउजर में ओपन हो जाता है। और जब आप इसके साथ किसी एक पर्टिकुलर फाइल को स्पेसिफाई करते हैं या लोकेशन ऑफ फाइल को स्पेसिफाई करते हैं तो वेब सर्वर डायरेक्ट इस पेज को आपके ब्राउजर में रीडायरेक्ट कर देता है। So it can contain or it contains what complete address from HTTP to domain name and directory page path that gives the complete information about the file location path। जहां तक बात है रिलेटिव URL की, तो बेसिकली रिलेटिव URL में जो होता है हम कंप्लीट एड्रेस तो नहीं देते हैं, बट इसमें हम एक्चुअली कंटेन करते हैं फाइल पाथ जो कि हमारे डोमेन नेम से अलग होता है, उसे हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। It tells the URL location in terms of the current location। तो बेसिकली रिलेटिव URL में हम ये अज्यूम करते हैं कि वी आर ऑलरेडी इन द वेबसाइट और वी आर ऑलरेडी यू कैन से और द डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ योर रूट डोमेन। जैसे कि जब आप कोई लिंक इस्टेब्लिश करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल, तो वी ऑलवेज राइट इन दिस वे, सो दिस इज व्हाट योर एब्सोल्यूट URL। बट जब हम रिलेटिव URL की बात करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल, तो हम कुछ इस तरह से अपना वर्क करते हैं। यहाँ पर ये डॉट स्लैश का मतलब होता है हम बात कर रहे हैं हमारे रूट फोल्डर की, मतलब ये जो फाइल है ये ऑलरेडी हमारे रूट में एग्जिस्ट कर रहा है, वो डायरेक्ट इसे ओपन कर देगा इस लिंक को यदि हम क्लिक करेंगे तो रिलेटिव URL में हम ये अज्यूम करते हैं कि वी आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ आवर डोमेन नेम और यू कैन से वी आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द वेबसाइट, वी आर ऑलरेडी इनसाइड द वेबसाइट एंड वहां पर जाकर हम लोकली अपने फाइल को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट URL एंड रिलेटिव URL। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। In this question it is asking that what do you understand by HTTP? How is it related to World Wide Web? Now we all are very much aware with this HTTP that it stands for Hypertext Transfer Protocol. It is used to access the required information over the internet. Now जब हम www की बात करते हैं या वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं तो वहां पर क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारा HTTP। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स जिसको फॉलो करके ही हम किसी नेटवर्क में कम्युनिकेशन करते हैं। जिस तरह से हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी जब से फॉर एग्जाम्पल यदि आप किसी क्लास में हैं तो वी ऑल नो दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट द स्पीकर एंड अगर आप इसका स्पीकर बोल रहा है तो उस समय यदि इफ यू हैव ए डाउट तो यू शुड रेज योर हैंड और उस दौरान आपको पूरी बातें उनकी सुननी है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं विच कम्स अंडर प्रोटोकॉल्स। सिमिलरली कंप्यूटर सिस्टम में भी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे कम्युनिकेशन होता है और कम्युनिकेशन करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं दे आर बेसिकली नोन एज व्हाट प्रोटोकॉल। और HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है वेब कम्युनिकेशन में जहां पर www इन्वॉल्व होता है एंड वी ऑल नो दैट बेसिकली दिस वर्ल्ड वाइड वेब इज व्हाट कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और यू कैन से दिस डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो नोन एज व्हाट योर वेबसाइट। और ये जो वेबसाइट्स होती हैं दे आर बेसिकली व्हाट कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट it may contain multimedia document that contain link to images, audios or videos on www. It allows us to exchange information on the www. HTTP is the basis for the www and allows seamless communication between web server and your web browser. So this is how we can understand what exactly HTTP is and how it is related to your World Wide Web. So let's move to the next question now. What are the two parts of an email address? Which character is used to separate these two parts? हम सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं ईमेल एड्रेस से। जब भी हम ईमेल एड्रेस की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। यूजर नेम ऑब्वियसली यदि आप अपना कोई ईमेल क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपना जो भी एक यूनिक नाम देते हैं उसे हम यूजर नेम के नाम से जानते हैं। जहां तक बात है डोमेन नेम की, ये डोमेन नेम तो बेसिकली उस
सर्विस प्रोवाइडर का हम नाम लेते हैं जो हमें ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है। देयर आर वेरियस ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स इन द मार्केट लाइक gmail.com, rediffmail.com is also the popular one. Earlier we were using yahoo.com, hotmail.com. so बहुत सारी इस तरह से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज हैं, तो उनके डोमेन को यूज करते हैं और बीच में हम यूज करते हैं @ का सिंबल विच इज बेसिकली ट्रीटेड एज व्हाट योर सेपरेटर. So this is how we can understand the parts of email address and the character we use as a separator. Let's move to the next question now. Explain the structure of email address. तो जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 16 में देखा, exactly वही आंसर हमारा structure of email address में भी होगा. So I am not going to repeating it again. So let's move to the next question now. Explain the structure of an email message. Also differentiate between CC and BCC field. ये क्वेश्चन काफी अच्छा हो सकता है. Now we all know that जब भी हम कोई ईमेल कंपोज करते हैं, उस विंडो में सबसे पहले हम देखते हैं हमें एक फील्ड मिलती है जिसे हम टू के नाम से जानते हैं, जहां पर कि हम जिस रेसिपिएंट का या जिसे हम ईमेल सेंड करना चाहते हैं उसका हम एड्रेस टाइप करते हैं. And just below the 2 we get another field which is known as what CC, which stands for carbon copy. यदि हमें कोई एक स्पेसिफिक मेल मल्टीपल पर्सन्स को सेंड करना है या मल्टीपल रेसिपिएंट्स को सेंड करना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम 2 के बाद उन ईमेल एड्रेस को जिन्हें हमें भेजना है हम उसे CC में मेंशन कर सकते हैं. तो आपकी जो मेल है उसकी कॉपीज उन ईमेल एड्रेस या रेसिपिएंट्स को भी चले जाती हैं जिन्हें हमने CC में मेंशन किया होता है. एंड सिमिलरली वी हैव BCC जो कि CC के जस्ट नीचे अवेलेबल होता है, which stands for blind carbon copy. Purpose is exactly same as of CC, but दोनों में जो एक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि CC में जितने भी रेसिपिएंट्स होते हैं उन सबको हेडर में सारे ईमेल एड्रेस विजिबल होते हैं, मींस दे कैन गेट टू नो दैट कौन कौन से रेसिपिएंट्स है या किनको ये ईमेल भेजा गया है. तो प्राइवेसी का हम CC में ख्याल नहीं रखते हैं, बट जब हम BCC की बात करते हैं तो वहां पर हम चाहे जितने मर्जी लोगों को ईमेल सेंड करते हैं, बट जो रिसीवर होता है इज नॉट एबल टू गेट द डिटेल्स ऑफ अदर पर्सन्स ईमेल एड्रेस. सो इस तरह से यूजिंग BCC हम काफी हद तक अपने सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. जहां तक बात है टीम वर्क की, देन वी यूज व्हाट योर CC. द नेक्स्ट फील्ड इज व्हाट योर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में ऑब्वियसली हमारे ईमेल का जो टॉपिक है वो हम मेंशन करते हैं, एंड देन जो भी हमारे ईमेल का कंटेंट होता है उसके लिए हम मैसेज बॉडी का यूज करते हैं, विच इज अगेन अनदर फील्ड. एंड फाइनली पूरा ईमेल या मैसेज लिखने के बाद में हम यदि उस ईमेल में कोई फाइल अटैच करके सेंड करना चाहते हैं, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो PDF हो या किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट हो, प्रेजेंटेशन हो, सो वो हम यूज करने के लिए इस अटैचमेंट बटन का या फील्ड का इस्तेमाल करते हैं. So these are, you can say, various fields, or you can say the structure of an email message. जहां तक बात है difference between CC and BCC field की, so you all know that कि CC का मतलब which is visible to all recipients, and BCC में जो भी आप email addresses mention करते हैं तो जो recipient होता है उन्हें पता नहीं चलता कि और किन्हें किन्हें ये मेल सेंड किया गया है. तो यहाँ पे सिक्योर्ड हम बोल सकते हैं. और जब हम बात करते हैं CCC में रिप्लाई टू ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करने की, तो ऑब्वियसली आप जब रिप्लाई टू ऑल भी करते हैं तो जितने भी रेसिपिएंट्स हमने मेंशन किए रहते हैं CC में उन सभी को उनकी रिप्लाई मिलती है, जबकि रिप्लाई टू ऑल में हमने जितने भी रेसिपिएंट्स को मेंशन किया हुआ है BCC में वो उन्हें रिप्लाई रिसीव नहीं होती है, इंडिविजुअली दे गेट दैट. दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस CC एंड BCC. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Now, in this question, it is asking that what are plugins? How do you install these on a web browser? Now, we all know that plugins are basically, additional components, or you can say software programs, जो कि हम किसी existing software में या existing computer program में उसके features को add on करने के लिए या enhance करने के लिए या बढ़ाने के लिए हम install कर सकते हैं. So plugin are software components that adds a specific feature to an existing application software like web browser या operating system.
से फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। अब अगर मैं कोई MySQL सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहता हूं और वो भी MySQL का लेटेस्ट वर्जन, और सपोज आई एम यूजिंग दैट Windows 7, तो जब मैं उसे इंस्टॉल करने जाऊंगा तो ये पहले आपसे बोलेगा कि आप विजुअल C++ डिस्ट्रीब्यूटेबल को पहले आप इंस्टॉल करो, देन आफ्टर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सिमिलरली इन वेब ब्राउजर ऑल्सो वी कैन ऐड वेरियस प्लगइन्स टू एनहांस इट फीचर्स। मैं एक बार आपको इसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई गूगल क्रोम, एंड अगर अब मुझे यहाँ पे कोई प्लगइन इंस्टॉल करना है तो ऑब्वियसली मैं सबसे पहले इसकी सेटिंग्स में चले जाता हूँ, एंड नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एक्सटेंशंस। नाउ यू कैन सी दैट अभी मैंने एक प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है बेसिकली अपने PDF डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए। नाउ सिमिलरली यदि आपको और भी प्लगइन्स ऐड करने हैं तो आप इस एक्सटेंशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप बॉटम में देखेंगे ओपन क्रोम वेब स्टोर है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस देन यू सी यहाँ पे बहुत सारे आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन vWall एंड और भी आप देख सकते हैं। देन आपको जो भी चाहिए उसे लेके आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर दीजिए। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लगइन एंड हाउ कैन वी इंस्टॉल इट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now it is saying that what are cookies, what is their utility. So we all know that cookies are small text files stored on user's computer and created and used by website to remember basic information or to record the user's browsing activity. बेसिकली ये स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती हैं। जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं और अगर उस वेबसाइट ने अपनी कुकीज रेडी की हुई हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके लोकल सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती हैं। उसका फायदा ये रहता है कि जो वेबसाइट्स होती हैं जहां से आप सर्विस ले रहे हैं उन्हें आपके पूरी ब्राउजर की एक्टिविटी का पता चल जाता है। उदाहरण के लिए यदि मैं बात करूं अमेज़न की, अगर आप अपनी अमेज़न में जाके सर्फिंग करते हैं और उस दौरान आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जानकारी लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कुकीज अमेज़न की होती है जो आपके लोकल सिस्टम में या ब्राउजर में इंस्टॉल होती है तो ऑटोमेटिकली वहां पे ये डिटेल स्टोर हो जाती है कि आपने लास्ट टाइम किस प्रोडक्ट को व्यू किया था। सो दैट व्हाट हैपेंस कि जब आप नेक्स्ट टाइम अमेज़न ओपन करते हैं तो यू सी दैट कि वही प्रोडक्ट से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशंस आपके स्क्रीन में आ जाती है। सेम थिंग हैपेंस विद अदर वेबसाइट्स ऑल्सो कि जिस प्रकार की भी आप एक्टिविटी करते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस आपकी कुकीज में होती हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपके सर्विस प्रोवाइडर को या जो वेबसाइट होती है उन्हें आपकी बेसिक डिटेल जानने में दिक्कत नहीं होती और उन्हें पता चल जाता है कि आप किस तरह की रिक्वायरमेंट ढूंढ रहे हैं, सो दैट वो आपके ब्राउजर में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर देते हैं। सो दिस इज योर कुकीज एक्चुअली, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज VoIP actually, how is it useful? So we all know that VoIP is basically a protocol which is known as voice over internet protocol, and it is a technology basically which makes audio and video calls possible from any internet connected device having a microphone and speakers. Now we all know that nowadays Zio phone, what they are using, they are actually using what this VoIP. Similarly, you know WhatsApp calling जब आप बनाते हैं या करते हैं, they also use this voice over internet protocol. तो voice over internet protocol is a very useful technology nowadays जिसकी मदद से हम properly लाइव चैट कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपनी बातों को थ्रू इंटरनेट लोगों के साथ डिस्कस कर पा रहे हैं। एंड इसके यूजफुल होने के जो मुख्य कारण हैं दैट इज ऑब्वियसली इट्स लोअर कॉस्ट, बिकॉज जब हम इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाती है। आप यहाँ से बैठे बैठे जब अमेरिका में ISD कॉल करते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड उसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा होती है, बट अगर थ्रू इंटरनेट आप बात करते हैं तो यू हैव टू पे वेरी 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 लेस अमाउंट, एंड सिमिलरली फंक्शनैलिटी जो होती हैं इसमें काफ़ी इंक्रीज होती हैं। सो दीज आर दी यूजेस वी कैन से, और दीज आर दी reasons it is very useful. Let's move to the next question now. Now it is saying that list some advantages and disadvantages of voice over internet protocol. So as we saw that the advantages are it is cost effective and it is easily available. As far as its disadvantage is concerned, obviously because ये protocols को follow करता है through internet, तो यहाँ पर ऑडियो और वीडियो के क्वालिटीज की गारंटी नहीं होती। कई बार हमें बहुत बेहतरीन क्वालिटी मिलती है और कई बार काफी क्रैक्ड फॉर्म में हमें ऑडियो या वीडियो सिग्नल्स रिसीव होते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द प्रोटोकॉल एक्चुअली। इट मे नॉट वर्क ऑन इमरजेंसी सर्विस नंबर्स लाइक पुलिस सर्विस या फायर सर्विसेज, वहां पे हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एज आई सेड ये इंटरनेट प्रोटोकॉल पे डिपेंड होता है
इसलिए कई बार हमें बहुत अच्छी सर्विस मिलती है और कई बार हमें सर्विस बहुत पुअर मिलती है एट द सेम नेटवर्क. So these are the some advantages and we can say the disadvantages of this VoIP. So now I hope that you will be able to understand the solution of all the questions, and I think that this video will help you a lot to know about the internet and webs. So that's it for this session. मिलते हैं next session में नए concept, नए solution, नए chapter के साथ में. Till then keep practicing, keep learning, and thank you for watching this video.